Today we'll start the packet tracer. So this is the packet tracer window. Then I want to tell you. So first thing is what is packet tracer. Packet tracer means suppose you want to create a network. Okay, when you create one simple network, then there is many components are required. So what are the components I have to tell you? First thing is server. Second is multiple clients, multiple workstation. Okay, then third is the cable. Okay, then four is the devices, connection devices. So these components are required, and the connection devices means what are there? First is a hub, second is the switch, okay, third is the router. All these things, so when you want to create one network, okay, in our home or any university or any office, these things we require to create this network, but it is a cost effective, so we cannot buy from the market. But still we want to practice on this components. What we'll do, there is a virtual facility available us, and that is called Cisco Packet Tracer. All these components we can find, okay, all these components you can find in this environment or in this platform. So I want to tell you, all of you see below this software, there you can find all these things. There is network devices. When you click this network devices, you can below find the router, switch, hub, wireless devices. All these components are there. Then this is the end devices. Left corner में end devices. When you click the end devices, you can also find PC, laptop, smartphone. All these things are there. Then this is also components not required. So connection. For a connection purpose, when you click the connection, you see all types of cables are there. ओके देखो यहाँ पर ऑटोमेटिकल चूज कनेक्शन टाइप कंसोल कॉपर क्रॉस ओवर कॉपर क्रॉस स्ट्रेट एंड serial DC. All types of cables are there, so that by using these components only we will be drag and drop into the this area. This is the context area. We will be drag and drop this component, and we can create a simple different types of network. Whether it is star, it is a bus network, any type of network we can create. So that before create that, you have to know the knowledge of cables. Okay, so I want to tell you, these are the what components, connection devices. So I'll be discuss about the first server. What is server? Server means who provide services for the client. That is called server. So all of you know already what is the server. Server means which will be accept the request and send the response. That is called server. Multiple workstation. Workstation means who request to the server. Request to server. जो server को request भेजता है, that is called what workstation. Then you will be discuss the cable. देखो यहाँ पर क्या क्या केबल यूज होता है. देखो मैं बोलता हूँ तुम लोग को. First thing is we will be discussing automatical choose connection type. Okay, automatically choose connection type. If you don't know which type of cable you will be, if you are confused which type of cable will be used in the connection,
then you choose always automatically choose connection type. It automatically, okay, it automatically what now convert which type cable it is actually needed. It automatically convert to that type of cable. So you can choose automatically choose connection type, and we'll be only discuss four cables. First is automatical choose connection type. Second is the copper straight through. Third the copper crossover. Fourth is the serial DC. Okay, so we'll be discussion about three cables. First is copper straight through. So because cable is the main important. If you don't know how to use the cable, then you cannot create a network. Second होता है copper crossover. Third is serial DC. DC stands for data equipment cable. Data communication equipment. Okay. So first where we use this type of cable, copper straight through. Okay, copper straight through is used in dissimilar devices. Okay, so dissimilar devices means what? Now suppose मैं बोल देता हूँ तुम लोग को what is the dissimilar devices? Dissimilar devices means suppose there is a PC and hub. This is called dissimilar devices. Hub and switch. These are dissimilar devices. Okay, then next is PC to switch. This is called dissimilar. If you are using dissimilar devices, then use the copper straight through. Okay, so this is called your cable choice, cable selection, copper dissimilar devices. Okay, then where is the copper crossover? Copper crossover, similar devices. Similar devices means what? बताओ सिमिलर डिवाइसेस क्या क्या होता है बोलो, बताओ हटा दो सिमिलर डिवाइसेस क्या होता है? पीसी टू पीसी सर हब टू हब यस हब टू हब स्विच टू स्विच this is called similar devices. अच्छा, then question is here, what is the cable for router एंड पीसी? ये दोनों में कौन सा केबल यूज होगा बोलो? राउटर पीसी में कौन सा यूज होगा? कॉपर क्या? स्ट्रेट थ्रू नहीं राउटर also whenever we use the router also accept the IP address. Okay, when you configure the router it needs the IP address. That means it is one type Ethernet of a crossover. Yes, it is called one type of a PC. So it is will be right below this line. Okay, this is also copper crossover. Clear? So you need to follow. As a serial DC where to be used? Now between router to router. If you don't know cable station, then you cannot create a network. You create a big network, but it will be failed. So again, then now this is called cable selection. Then now I'll be discuss about connection devices. Connection devices means hub, switch, router. First thing is hub. Where to be hub used? So when single server want to connect below or equal to 4, okay, equals to 4 कंप्यूटर. देखो यहाँ पे देखो कितना नोट देखो कितना लेते हैं. देखो मैं भी यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्ट में अभी हब स्विच हब. देखो हब में देखो कितना ले रहा है. देखो
मैं सब यहाँ पर कनेक्शन में केबल ला रहा हूँ अभी, तो देखो यहाँ पर कितना 6. ओके, इफ यू वांट टू कनेक्ट ओनली 6 पीसी देन यूज द हब. If you want to connect more than 6 PC, then you use the what? Switch. देखो अभी switch में ले रहा हूँ. Switch. Okay. Switch. देखो कितना ले रहे हैं देखो. Understand? समझ में आया कि नहीं आया? अभी सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर वो राउटर और पीसी जो सिमिलर डिवाइस है नहीं, तो उनका कैसे होगा? मतलब इससे सिमिलर डिवाइस होता है, वही बोल रहे हो? सर वो आप नोटपैड जरा ओपन करिए. हाँ. सर वो राउटर और पीसी जैसे क्रॉसओवर, कॉपर क्रॉसओवर यूज किए, तो वो तो सिमिलर डिवाइस है ना, जैसे पीसी पीसी, हब हब, स्विच टू ये स्विच. मैंने बताया, राउटर इज नॉट ए पीसी, बट हम्म. पीसी में तुम लोग आईपी एड्रेस देते हो कि नहीं देते हो, बोलो? हाँ हाँ सर, उसका अपना तो आईपी एड्रेस राउटर में होता भी है. आईपी एड्रेस देना पड़ता है. अच्छा. इट इज एक्सेप्शनल केस. ओके. ओके, सो इट इज कॉल्ड. अच्छा, ये वाला देखो समझ में आ गया. दिस इज कॉल्ड योर स्विच. इफ यू वांट टू कनेक्ट मोर देन वन पीसी, मोर देन 6 पीसी, देन यूज द स्विच. इफ यू वांट टू कनेक्ट ओनली लिमिटेड टू 6 पीसी, देन यूज द ओके स्विच. अच्छा, नेक्स्ट होता है तुम लोग का ओके राउटर. व्हाई वी यूज द राउटर? Hub and switch is used in same network, but router is used to connect more than one network. देखो यहाँ पे देखो, सपोज सॉरी यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे 2 पीसी है. पीसी 1, इसका आईपी एड्रेस क्या होता है? 10.1.1.1. दिस इज द पीसी 2, इसका होता है 10.1.1.2. Then in this case what will happen? Now it is the same network, so we add the either hub or switch. If PC1 is 10.1.1.1, if PC2 is 128.1.1.2 or 1, then what will happen? दोनों नेटवर्क डिफरेंट होता है, तो हम इसको कैसे कनेक्ट करेंगे बोलो? किसके थ्रू कनेक्ट करेंगे? via router. Clear? If router is a devices which is used to connect more than one network, not more than one PC. Okay, difference समझ में आ गया? राउटर मतलब इट इज यूज टू कनेक्ट मोर देन वन नेटवर्क. अगर यहाँ पर बहुत सारे नेटवर्क है, अगर तुम कनेक्ट करना चाहते हो तो यूज द राउटर. अगर इफ यू आर टू कनेक्ट विद इन सिमिलर नेटवर्क, देन यू कैन यूज द स्विच और हब. ओके, तुम लोग का नेटवर्क कितने टाइप का है बोलो? कितने टाइप का नेटवर्क है बोलो थोड़ा? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई. हम जनरली इस तीनों यूज करते हैं. क्लास ए का रेंज क्या है? क्या है तुम लोग गूगल में देख लेना. सपोज इसका रेंज होता है 1 to लेकर, सपोज में 1.1.1.1 तो लेकर कितना होता है 126.1.1 ऐसे करके होता है. बोला तुम थ्योरी में पढ़ोगे. और वो क्लास बी कहाँ पर शुरू होता है? 128 की 127 बोलो सर. 128. ये 127 क्यों नहीं? क्योंकि सर उसका वो हो जाता है, उसी का आईपी एड्रेस लोकल कोड होता है. हाँ लोकल, यस 128. हाँ ठीक है, तुम लोग समझे. अच्छा ठीक है. अच्छा मैं तुम लोग को एक बात बोलता हूँ, तुम लोग अच्छा ठीक है 128.1.1.1. अच्छा तो अभी बोलो, इसका हम भूल जाते हैं. ठीक, ये वाला क्लास सी का देते हैं कितने? 192.168.1.1.1. अच्छा अभी बोलो, ये वाला जो देख रहे हो उसका नेटवर्क
आईडी क्या होता है और नेटवर्क आईडी क्या होता है। अच्छा देखो, इसका तुम्हारा नेटवर्क आईडी होता है। अच्छा, और सबनेट मास्क क्या होगा बोलो, इसका नेटवर्क आईडी क्या होता है एंड सबनेट मास्क क्या होगा। नेटवर्क आईडी मतलब क्लास ए के ए का है, तो क्लास ए में तुम्हारा क्या रूल है, फर्स्ट विल बी टेक द ओरिजिनल नंबर, रेस्ट ऑफ विल बी जीरो। तो इसका मतलब क्या होता है, दिस विल बी ओके 1.0.0.0, दिस इज द नेटवर्क आईडी। एंड व्हाट इज द सबनेट मास्क, सबनेट मास्क इसका क्या होगा, सबनेट मास्क इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई व्हिच क्लास यू आर बिलोंग्स टू। 255 255 उसके बाद 255 0 0 समझ में आ गया सबको। अच्छा, इसका नेटवर्क आईडी क्या होगा बोलो, क्या होगा इसका नेटवर्क आईडी बताओ। 128.1 सर 1 फिर 0 1.00 यस। उसका सबनेट मास्क क्या होगा, सर 255.255 यस यस 255.255.0.0 सेम आज नेटवर्क आईडी। तुम लोग को उस टाइम मुझे मत पूछना सर नेटवर्क आईडी क्या है, क्लियर, इसलिए मैं तुम लोग को पढ़ाई देता एडवांस 0.0 सबनेट मास्क। अच्छा देखो, तो सर्वर मीन्स हु प्रोवाइड सर्विसेज। Don't worry, at the end I will be give you this, I am recording this, I will be give you this video, recording video. So server means who provides services for the client, multiple workstation who requested server. Cable means I have told that copper straight through, copper crossover and serial DC. Okay, copper straight through means it is used in dissimilar devices. Copper crossover means it is used similar devices. But exceptional case is router to PC will be used the what, and router accept the IP address, so PC also accept the IP address, so that router to PC we use the copper crossover. But it is in the what seem to be different PC router, but router is also one type of PC because we configure the IP address inside the router. Then serial DC means what, na data communication equipment, and it is used between router to router. Then in the network we are using okay class A, class B, class C network. Class A stands for 1.1.1 और इसका नेटवर्क आईडी क्या होता है, फर्स्ट नंबर is the remain to the same and others 3 will be 0.0.0. सेम आज क्लास बी का क्या होता है 128.1 अप टू दिस इट विल रिमेन द कांस्टेंट। देखो नेटवर्क आईडी 128.1 इट इज कांस्टेंट, रेस्ट 2 विल बी 0.0। क्लास सी 192.168.1 अप टू दिस रिमेन द कांस्टेंट, ओके कांस्टेंट, एंड लास्ट डिजिट इज द 0। सेम आज सबनेट मास्क, व्हाट इज द सबनेट मास्क, सबनेट मास्क मींस it is used to identify which type of network you will be used. Okay, so that means class C network you are using means you understood that okay, from subnet mask you will be understood which type of networking you will be used. So 255.255.255 means we are going to be use class C network. If you are using 255.255 means by default you are using, or anybody can understand that it is the programmer is used a class B network. If only 255 means okay, then anybody will be understand that you are using class A network. Subnet mask is used to identify which type of class networking you are used, class, whether it is class A or class B or class C. Okay, so this is the most important things
Okay, whenever you will be connect to the packet tracer, if you will not given the proper IP address in the machine, then you cannot connect to the one PC to another PC. So you will be just remember these three things. Okay, okay. Then now first I'll be show you one by one from basic to advanced. Okay, फर्स्ट बेसिक थिंग आई विल शो यू. देखो अभी मैं उसको डिलीट कर देता हूँ सारे चीज को. देखो व्हाट आई विल डू, फर्स्ट आई विल शो यू वन कनेक्शन बिटवीन टू पीसी. देखो यहाँ पर मैंने एक पीसी लिया अभी. देखो ड्रैग एंड ड्रॉप किया है अभी, और एक पीसी लेगा यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप किया. दो पीसी. फर्स्ट आई विल शो यू द इंटरनेट द कनेक्शन बिटवीन टू पीसी. टू पीसी के अंदर जो कनेक्शन करूंगा तो देखो इस जो पीसी होता है ये वाला होता है तुम्हारा डिस्प्ले करने के लिए. मैं चाहता हूँ उसके आईपी एड्रेस क्या होना चाहिए ना 10.1.1.1 और उसका आईपी एड्रेस क्या होना चाहिए. सपोज यहाँ पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ 10.1.1.2. ओके, देयर इज टू पीसी. देन यू टेल मी द क्वेश्चन. Actually, I have written 10.1.1. Actually, it is configure or it is only for display purpose. बोलो ये वाला कॉन्फ़िगर हुआ कि डिस्प्ले के लिए मैंने अभी लिखा है अभी यहाँ पर डिस्प्ले. यस, दैट मीन्स whenever you see this PC, that means you automatically know that it is the IP address 10.1.1. अच्छा, then next is I'll be configure. Then how to configure? I'll be click on this PC, then go to the desktop. Desktop पे मैं जाऊंगा और देखो यहाँ पर लिखा है IP configuration. Then IP configuration will click. And remember one thing, whatever things you have written will be just same thing will be right here, otherwise it will mismatch. 10.1.1.1. ओके, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर नीचे क्लिक करना है. क्लिक करने से क्या होगा, सबनेट मास्क क्या लेगा बोलो सब. यहाँ सबनेट मास्क क्या लेगा मैंने बताया था, बोलो क्या लगा. Yes, 255. देखो ऑटोमेटिक ले गया. क्लियर. उसके बाद मैंने उसको क्लोज कर दिया. नेक्स्ट थिंग, इस पीसी में जाऊंगा, इसमें राइट क्लिक द डेस्कटॉप, सिंगल क्लिक करना है और आईपी कॉन्फ़िगरेशन. यहाँ पर क्या करना है 10.1.1.2. जब इसमें क्लिक करूंगा इट विल ऑटोमेटिक डिस्प्ले सबनेट मास्क. ओके, देन आई विल बी क्लोज दिस. इस दोनों डिवाइसेस हो गया, मगर आई डोंट नो व्हिच टाइप ऑफ केबल आई विल बी यूज इन दिस सिलेक्शन लिस्ट. देन व्हिच टाइप ऑफ केबल नाउ आई विल बी यूज. बताओ, अगर मुझे इस ग्रुप में कौन सा केबल यूज पता नहीं तो कौन सा केबल यूज करूंगा. क्रॉस ना ऑटोमेटिक. हाँ यस ऑटोमेटिक. इफ आई डोंट नो देन देखो यहाँ पर मैंने क्लिक किया. ओके, केबल कैन नॉट बी थ्रू दैट पोर्ट. देखो ये देखो केबल आ गया. देन इसमें क्लिक किया है, क्लियर, ऑटोमेटिक कनेक्शन हो गया. ओके, अभी मुझे देखना है डाटा ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है. देखो तो चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो यहाँ पर मैसेज है ऐड सिंपल पीडीएफ. यहाँ पे क्लिक करोगे, ये देखो यहाँ पर स्टाटस लिखा है. देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ तुम लोग को. तो देखो एक मिनट, यहाँ पर तुम लोग देखो लिखा है लास्ट स्टाटस लिखा है. देखो सोर्स कहाँ पे, व्हिच आईपी एड्रेस यू वांट टू सेंड द मैसेज. डेस्टिनेशन मींस वेयर टू बी सेंड. देखो अभी मैंने ड्रैग किया, अभी यहाँ पे आ गया. समझ में आ गया, सक्सेसफुल दिखा रहा है कि नहीं, समझ में आ गया. बताओ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है सक्सेसफुल. यस सर. ठीक है. अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टाइम आई विल पिंग द मशीन. अच्छा मैं मुझे पिंग करके देखना है सक्सेसफुल. सपोज ये वाला विंडो नहीं आ रहा है, ये वाला विंडो कैसे भी करके हाइड हो गया. देखो ये देखो ये वाला हाइड हो गया, मुझे दिख नहीं, मुझे फिर भी मुझे देखना है. तो हाउ विल चेक कि आई विल क्लिक दिस मशीन एंड क्लिक द कमांड प्रॉम्प्ट. कमांड प्रॉम्प्ट को मुझे जाना है और मैं पिंग में क्या लिखूंगा, व्हाट विल राइट हियर, बिकॉज़ आई एम क्लिकिंग ऑन 10.1.1. देन व्हाट विल राइट इन द पिंग मशीन. पिंग में क्या लिखूंगा बोलो, क्या लिखूंगा, किसको पिंग करना है मुझे. पिंग 10.1.1.1 2. रिप्लाई आ रहा है. अगर रिप्लाई नहीं आता तो टाइम आउट दिखा रहा था. समझ में आएगा सबको. अगर इस विंडो काम नहीं कर रहा है, तुम लोग को डिजेबल हो गया, तो यू कैन
check this type of whether we can check the whether your machine is properly data receiving or not. क्लियर हो गया? ये सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ठीक है. मैं सोचा तुम लोग को भी मैंने पढ़ाने के अंदर भी तुम लोग को प्रैक्टिस कर दिया होगा. ठीक है. अभी नेक्स्ट तुम लोग को दिखाता हूँ. ओके, हाउ टू कनेक्ट वन मल्टीपल पीसी, हाउ टू कनेक्ट बिटवीन मोर देन 2 पीसी. देखो अभी मैंने उसको डिलीट कर, देखो कैसे डिलीट करना. देखो यहाँ पर एक क्रॉस बटन आ रहा है, देखो डिलीट लिखा है क्रॉस, इसको प्रेस करना. ओके, यहाँ पर इसको क्लिक करना. अभी फिर मुझे वापस यहाँ पर आरो लाना है, तो एस्केप प्रेस करो. आइदर यू क्लिक द दिस सिलेक्ट एस्केप. देखो लिखो सिलेक्ट लिखा है, एस्केप. आइदर यू क्लिक द सिलेक्ट और एस्केप. देखो एस्केप क्लिक करने से आ गया. अभी यहाँ पर मुझे क्या करना है, अभी तीन पीसी लेना है, 3 पीसी. एंड व्हाट इज द आईपी एड्रेस? आई विल बी सेट द आईपी एड्रेस 10.1.1.3. उसके अंदर भी जाके कॉन्फ़िगर करना है मुझे 10.1.1.3. अभी बोले कैसे कनेक्ट करना है इस तीनों को एक साथ, बताओ. ऑटोमेटिक से ही कनेक्ट कर. नहीं को मैंने ऑटो के कौन सा वो स्विच हाँ पहले हब में दिखा देते हैं. देखो हब, जो भी हब ले सकते हो. क्लियर? अभी बोलो दोनों में से मैं अभी ऑटोमेटिक भूल जाऊंगा. अभी मुझे बोलो तुम लोग मैन्युअली करना है, तो कैसे कौन सा केबल यूज करोगे? सब सर जी. हाँ बोलो कौन सा केबल यूज करोगे? Straight. ऑटोमेटिक. नहीं ऑटोमेटिक भूल जाओ. ऑटोमेटिक में बताया था जो जानता नहीं. अभी बोलो जो तुम्हें थ्योरी पढ़ा कौन सा केबल यूज करोगे? Straight. कॉपर स्ट्रेट. देखो एवरी कॉपर स्ट्रेट. कौन सा इसमें से कौन सा पोर्ट यूज होगा? सब फास्ट है. यस, फास्ट इंटरनेट 0. यस देखो 0%. हो गया. अभी देखिए मैसेज ट्रांसफर करते हैं. मैंने अभी तुम लोग को और नहीं चाहता हूँ दिखाने के लिए, जो ये वाला मैं चाहता हूँ यहाँ पर स्टार्टर दिखाने और डिलीट करना. जब भी तुमको पूछा जाएगा सक्सेसफुल हो रहा है नहीं दिखाओ, तुम हमेशा वो विंडो को डिलीट करके हमको रिफ्रेश विंडो दिखाना. देखो सर कॉपर क्रॉस वायर क्यों नहीं ले सकते? सिमिलर डिवाइसेस नहीं है ना, मैंने बताया था. अच्छा ठीक है. तुम जब घर में तुम खुद ट्राई करके देख लेना जब भी फ्री होगे. देखो आ गया सक्सेसफुल. यस. यस सर. अच्छा ये वाला तुम लोग का हो गया. क्लियर? तो हाउ टू यूज द व्हाट ना योर हॉप. हॉप को कैसे कनेक्ट करते हैं वो वाला हो गया. अभी देखो मैं हॉप को वाला रिमूव कर देता हूँ. अरे यारो हाँ बोलो. उल्टा क्यों है वो बीच वाला? ये बीच वाला? हाँ हाँ क्या हुआ? एरो उल्टा है. एरो वो डायरेक्शन वो माउस मैंने एक्चुअली वो ऐसे नहीं, वो ऐसे कैसे बाय डिफॉल्ट ले जाता है ऐसे, तो ये वाला ठीक नहीं. देखो अगर सिमुलेशन, देखो सिमुलेशन में जाओगे, देखो तो यहाँ पर प्ले मारोगे तो तुम्हारा ये सिमुलेशन लैब होता है. डाटा कैसे जाता है वो दिखाएगा. देखो इस तरह से डाटा जा रहा है, फिर ऐसे आएगा. देखो इसका देखो. अच्छा हो गया? ओके सर. समझ में आ गया? अच्छा ठीक है. अभी फिर रियल टाइम चले जाओगे. अच्छा देखो अभी मैंने उसको क्लोज कर दिया, रिमूव कर दिया. देखो अभी स्विच लेके करना है. देखो डिलीट कर दिया, डिलीट स्विच. नेटवर्क डिवाइसेस क्या है अभी देखो. ये वाला स्विच देखो 2960. क्लियर? एक काम करो, मैं तुमको 5 मिनट टाइम देता हूँ, डायरेक्ट स्विच वाला करो, करके दिखाओ, बताओ. चैट बॉक्स में लिखो सक्सेस हो गया, उसके बाद मैं आगे जाऊंगा. तुम लोग थोड़ा स्विच वाला करो. 1255 54 हुआ है.
12 तो तुम लोग को टाइम देता हूँ 1 बजे तक करो, उसके बाद राउटर जाएगी। खुद ट्राई करो और देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सेम सेम कॉन्फ़िगरेशन सेम। करो, किसका हो गया चैट बॉक्स में सक्सेस लिखो, उसके बाद आगे जाएंगे। बोलेंगे बताओ। Crossover. हाँ यस, कॉपर क्रॉस हो, देखो क्या 0 0 0 से 0 0 पोर्ट में मैंने सिलेक्ट कर दिया। क्रॉस ओवर। अच्छा समझो, अभी मैंने राउटर को क्लिक किया, देखो राउटर क्लिक करने के बाद क्या होगा, विल बी गो टू द कॉन्फ़िग पार्ट। वहां पर डेस्कटॉप आ रहा था आईपी एड्रेस सेट करने के लिए, बट हियर यू विल क्लिक द कॉन्फ़िग पार्ट, देन यू कैन फाइंड 2 ports are there, फास्ट इथरनेट 0x0, फास्ट इथरनेट 0x1। तो अभी मैंने क्या करूंगा, अभी देखो अभी अच्छा देखो समझो, देखो जब यहाँ पर मैं माउस रख रहा हूँ तो व्हाट विल डिस्प्ले, इट इज कॉल्ड 0x0 पोर्ट। यहाँ पर जो माउस रख रहे हैं तो क्या दिख रहा है, देखो 0x1। क्लियर? अच्छा ये नहीं दिख रहा है, ठीक है हम काम करते हैं। देखो ये एक्चुअली होता है 0x1, ये होता है 0x0। तो अभी मैंने उसको क्लिक किया, अभी देखो क्लियर। अच्छा तो अभी बोलो राउटर का आईपी क्या देंगे, देखो यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये 0x0 है, इसमें हम क्या करेंगे, ये जो राउटर होता है, ये राउटर क्या होता है, दोनों नेटवर्क को पकड़ के होल्ड करके रखेगा। क्लियर? ये जो राउटर होता है तुम्हारा दोनों नेटवर्क को वो क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा। तो राउटर का भी 2 आईपी रहना चाहिए। वो आईपी क्या होता है, सेम होना चाहिए कि डिफरेंट होना चाहिए, बोलो। ये जो राउटर होता है Same. उसमें डिफरेंट होना चाहिए, मतलब Sir, एक different. हाँ एक 10 पॉइंट को बिलोंग्स करेगा तो एक 128 पॉइंट को बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0x0 में क्या लिखेंगे, 10.1.1.2। क्लियर? सबनेट मास्क ऑटोमेटिक टैग 255। क्लियर? देखो 0x0 पे मैंने क्लिक किया, ये वाला लिख दिया। अभी उसको मैंने ऑन करना पड़ेगा, याद रखो विल बी ऑन द राउटर। देखो राउटर मैंने यहाँ पर ऑन किया, अगर ऑन नहीं करोगे तो नहीं होगा। क्लियर? इसके बाद 0x1 राउटर के बीच में कनेक्टिविटी है, इसलिए 2 आईपी एड्रेस लिखोगे। 0x1 में क्या करोगे, क्या लिखोगे, इस साइड से बोलो क्या लिखोगे, 128.1.1.2। ओके 128.1.1.2 और आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली सबनेट बस ले जाएगा। उसको यहाँ पर क्या करोगे, ऑन कर दो। क्लियर? अच्छा फिर भी मेरा डाटा ट्रांसफर नहीं होगा, क्यों, देखो बिल्कुल नहीं। देखो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, देखो टाइम थोड़ा लगेगा, देखो डाटा मेरा ट्रांसफर नहीं होगा, देखो डाटा नहीं जा रहा है। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक क्यों नहीं जा रहा है, हमको चेक करना पड़ेगा। देखो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, डिलीट मैंने कर दिया। क्लियर? सक्सेस। फिर यहाँ पर देखेंगे शायद जा सकता है, क्योंकि मेरा कुछ एरर तो नहीं था, मैंने सक्सेसफुल लिखा था। ठीक है अभी नहीं जा रहा, फिर हम इसको क्लिक करेंगे, उसका आईपी एड्रेस देखेंगे क्या है, आईपी एड्रेस नहीं है, ऑटोमेटिकली गायब हो गया। इसलिए मैंने और एक बार देना पड़ेगा 10.1.1.1। जो मैं डिलीट कर दिया तो सारे चला गया। क्लियर? तो अभी सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली आ गया। अभी क्लोज कर देते हैं। अभी देखो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अभी मैंने डिलीट कर दिया, अभी देखो सक्सेस सक्सेस। फिर देखो सक्सेस आ गया, सक्सेस, फिर सक्सेस। अच्छा अभी बोलो इट विल बी ट्रांसफर फ्रॉम 10 to 120 ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, बोलो। अगर 10 टू राउटर पास हो रहा है, 120 टू राउटर पास हो रहा है, अभी बोलो इस दोनों के बीच में डाटा ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा? सर होगा। नहीं होगा, नहीं होगा। होगा। क्योंकि देखो जब 10.1 से डाटा ट्रांसफर हो रहा है, देखो तुम्हारा क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रॉब्लम होगा क्या,
यहाँ पर जो जाएगा तो तुम्हारा देखो यहाँ पर जो डाटा जाएगा तो तुम्हारा क्या होता है, यहाँ पर दोनों डिफरेंट नेटवर्क होता है। क्लियर? यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो डाटा जाएगा 128.1.1.2 पे फेस कर रहा है। जो 128 से जा रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 10.1.1 पे फेस है। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डिफॉल्ट गेटवे एड्रेस देना पड़ेगा। डिफॉल्ट गेटवे एड्रेस मतलब कौन सा होता है, देखो तुम्हारे यहाँ पर जो राउटर होता है, देखो देखो पहले राउटर होता है, देखो पहले एक राउटर होता है, इसमें क्या होता है तुम्हारा दो पार्ट हो जाता है। क्लियर? इस साइड से क्या रहता है तुम्हारा 10.1.1.2 रहता है, इस साइड से क्या रहता है तुम्हारा 128.1.1.2 रहता है। तो अभी क्या हो रहा है, सबनेटिंग सर। हाँ हाँ देखो यहाँ पर क्या होता है 10.1.1.2 रहते हैं, 128.1. तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें डिफॉल्ट गेटवे एक्सेस देना पड़ेगा। देखो डिफॉल्ट गेटवे एक्सेस देखो कैसे देते हैं, देखो यहाँ पर इसको क्लिक करोगे, 10.1 को क्लिक करोगे, पीसी में जाओगे। क्लियर? तो बोलो यहाँ पर मैं क्या करूँगा ना, जब डाटा यहाँ पर जा रहा है तो बोलो पहले कौन सा आईपी एड्रेस वो फेस कर रहा है, 10.1.1 से जो जा रहा है तो पहले कौन सा आईपी एड्रेस वो उसको फेस कर रहा है, बोलो जब इस साइड से जा रहा है पहले कौन सा आईपी एड्रेस उसको वो ये कर रहा है, चेक कर रहा है, बोलो सर 10.1.1. हाँ 10.1.1.2। तो पहले अगर तुम लोग 10.1.2 को लिख रहे हो तो 10.1.2 ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई द 128.1.1.2। तो अभी क्या हो रहा है, दोनों में लिंक होता है। तो इसलिए तुम लोग जब 10.1.1.2 को डाटा सेंड करते हो वो इंटरनली क्या होता है 10.1.2 से 128.1.1.2 से डाटा आ जाता है, उसको 128 पर आने के बाद क्या होता है सेम नेटवर्क हो जाता है, इसके नीचे जो नेटवर्क होता है वो सेम नेटवर्क होता है। तो इसलिए तुम्हारा क्या होता है डाटा ट्रांसफर इजीली हो जाता है। इसलिए तुम लोग को क्या करना पड़ेगा ना, तुम लोग उसमें क्या करोगे ना, उसका ये दोगे एक्सेस क्या डिफॉल्ट गेटवे एक्सेस लिखोगे। क्लियर? और इस साइड से भी ऐसे जाना, इस पे यहाँ पर भी क्लिक करना और आईपी कन्फर्म से क्लिक करना। क्लियर? यहाँ पर क्या दोगे डिफॉल्ट गेटवे एक्सेस, बोलो क्या दोगे डिफॉल्ट गेटवे एक्सेस, इस साइड से क्या लिखोगे, हाँ 128.1.1.2. यस 1.2। देखो अभी क्लिक कीजिए, अभी देखो डाटा ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। समझ में आ गया? Yes sir. Yes sir. तुम लोग बोल रहे होगे सर तो हमको देखा है नहीं, यहाँ से हमें डाटा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, हमको डायरेक्ट दिखा दे। तो इसलिए मैं काम करता हूँ, तुम लोग को वो वाला डिफॉल्ट गेटवे वाला मैं काट के दिखाता हूँ। अभी देखो यहाँ से यहाँ तक सक्सेस, यहाँ से यहाँ तक सक्सेस, Success. यहाँ से यहाँ से फिर समझ में आ गया? Yes sir. अच्छा ठीक है, नेक्स्ट दिखाऊंगा तुम लोग का, नेक्स्ट दिखाऊंगा तुम्हारा डबल आउट कनेक्शन, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तुम लोग काम करो, मैं तुम लोग फिर 5 मिनट टाइम दे रहा हूँ, ये वाला तुम लोग थोड़ा कर लो। क्लियर? ये वाला जो देख रहे हो इसको थोड़ा कर लो, ये राउटर वाला थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। मैं तुम लोग को 10 मिनट टाइम देता हूँ, 110 हो गया, 120 में मैं डबल राउटर कनेक्शन दिखाऊंगा। मैं अभी डिजाइन कर रहा हूँ, तुम लोग अभी करो, 5 मिनट टाइम, 5 मिनट टाइम दे रहा हूँ, 5 मिनट। उसके बाद तुम लोग का असाइनमेंट दिया जाएगा, असाइनमेंट तुम लोग करोगे।
क्या हो गया, जल्दी डाल लिखो। देखो डबल डॉटर कैसे कनेक्ट करते हैं, देखो ठीक तरह अच्छी तरह देखो। तुम लोग को ओनली कौन सा केबल यूज करना है बता दो। पीसी टू हब कौन सा केबल यूज करेंगे, कौन सा केबल यूज करेंगे बताओ। कॉपर क्रॉसओवर स्ट्रेट। है कॉपर स्ट्रेट यूज करेंगे ना। अरे देखो कॉपर स्ट्रेट यूज किया, देखो ये वाला इम्पोर्टेंस होता है, इस तरह कॉपर स्ट्रेट यूज किया अभी। इस दोनों में क्या यूज करेंगे, कॉपर स्ट्रेट। 0 0 में यूज किया, देखो अब अच्छी तरह देखो 0 0 में मैंने यूज किया है सेम आज। इस तरह यहाँ पर भी मैं कर रहा हूँ कॉपर स्ट्रेट। इसको भी 0 0 कर देते हैं। क्लियर, देखो ये वाला हो गया। उसका आईपी एड्रेस क्या देंगे बोलो, 10.1.1.1.1। उसके आईपी एड्रेस क्या दे रहा हूँ देखो, 10.1.1.1.2। ये वाला नेटवर्क क्या देंगे बोलो, क्या देंगे बोलो जल्दी। 128.1. यस 128.1.1। इसके भी देंगे क्या, 128.1.1.2। अच्छा अभी क्या करेंगे, ये वाला हो गया। अच्छा अभी ये देखो ये वाला 0 0 पोर्ट दिखा रहा है, क्लियर। तो अभी मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, अच्छा ये जो राउटर होता है, क्लियर देखो। अच्छा देखो ठीक है, अभी देखो यहाँ पर मैंने आईपी एड्रेस में चेंज कर दिया, देखो डेस्कटॉप आईपी एड्रेस देखो अभी देखो अभी मैं यहाँ पर आईपी एड्रेस क्या ले रहा हूँ, 10.1.1.1 आईपी एड्रेस ऑटो ले गया अभी 255। यहाँ पर इस तरह यहाँ पर भी क्लिक करता हूँ तो डेस्कटॉप, क्लियर। इसमें यहाँ पर क्या रहता हूँ 10.1.1.2, क्लियर। आईपी एड्रेस यहाँ पर क्लिक हो गया, क्लियर। अभी यहाँ पर मैं जाऊँगा, ये वाला देखो क्या दिख रहा है, 0/0 दिख रहा है। अभी यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये 0/0 सेटअप कर रहा है। तो यहाँ पर अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ, अभी 0/0 पे जा रहा हूँ, देखो अच्छी तरह देखो 0/0 पे जा रहा हूँ, उसको ऑन कर रहा हूँ। अभी बोलो उसका आईपी एड्रेस क्या देंगे, बोलो उसका आईपी एड्रेस क्या देंगे बताओ। 1.3 सर। हाँ 10.1.1.3 यस हो गया। अभी उसको मैंने ऑन कर दिया, देखो अच्छी तरह देखो ये वाला हो गया। फिर इस तरह, अच्छा इसको मैंने सेटअप कर दिया। अभी उसका डिफॉल्ट गेटवे एक्सेस चेंज करना पड़ेगा। अभी डिफॉल्ट गेटवे एक्सेस में क्या देंगे बोलो, यहाँ पर क्या देंगे बोलो। 1.3 सर। हाँ 10.1.1.3। अच्छा ठीक है, इस तरह यहाँ पर भी जाएंगे, यहाँ पर भी चेंज कर देंगे, देखो 10.1.1.3 हो गया। अच्छा इस तरह यहाँ पर भी जाएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे ना 128 कर देंगे, 128.1 कर देंगे। देखो यहाँ पर मैं जा रहा हूँ, क्लियर 128.1.1.1 सबनेट बार ऑटो ले गया, क्लियर। यहाँ पर इस तरह भी यहाँ पर कर देते हैं, क्लियर। यहाँ पर डेस्कटॉप में यहाँ पर क्या होता है ना 128.1.1.2, क्लियर। और इसमें क्या करते हैं सबनेट बार देखते हैं, इससे इसके बाद हो गया। एक बार मैं कर देता हूँ क्लियर ना 128.1.1.1। अच्छा अभी इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, फिर ये वाला पोर्ट मैंने देख देता हूँ क्या 0 0, ये 0 0 है। तो इसके यहाँ पर क्लिक करता हूँ, 0 0 में कनेक्टेड है इसलिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया। अभी 0 0 में क्लिक किया, अभी देखो अभी उसको ऑन कर दिया। अच्छी तरह देखो 128.1.1.3 दे रहा हूँ, सबनेट हो गया, अभी हो गया, क्लियर। अभी देखो दोनों में डाटा ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो इसमें से इसको सक्सेस, इसमें से इसको सक्सेस, ओके। अच्छा तो अभी क्या करना है, अभी इस तरह यहाँ पर भी मैं कर रहा हूँ, देखो सक्सेस सक्सेस। अच्छा अभी मुझे क्या करना है, इस दोनों में से कनेक्ट करना है। तो इसलिए मैंने बताया था सीरियल डीसी,
देखो कैसे इंपोर्टेंट होता है कि सीरियल डीसी। देखो देखो मैं यहाँ पर क्या करूँ, इसको क्लिक कर रहा हूँ। अब देखो सीरियल डीसी केबल देखो, ये वाला ले रहा हूँ, यहाँ पर कनेक्ट किया। यहाँ पर सीरियल डीसी का पोर्ट नहीं है, थोड़ा अच्छी तरह देखो, यहाँ पर सीरियल डीसी का पोर्ट नहीं है, इसलिए मुझे ऐड करना पड़ेगा। कैसे ऐड करना पड़ेगा, देखो इसको यहाँ पर क्लिक करोगे, क्लियर, यहाँ पर क्या जाओगे, फिजिकल जाओगे, फिजिकल में मुझे ऐड करना है, तो WIC2T क्लिक करना है, WIC2T, क्लियर। यहाँ पर थोड़ा सा जूम इन कर देगा, हमको डिवाइस से अच्छी तरह दिखेगा, जो स्विच होता है स्विच अच्छी तरह दिखाई देगा। देखो जूम इन कर दिया, अभी देखो ये वाला स्विच है, क्लियर। WIC2T को लाकर यहाँ पर मैंने ये किया, वो क्या बोल रहा है, पहले पावर ऑन है, पहले स्विच ऑफ करो। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, स्विच ऑफ कर दिया, देखो स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद यहाँ पर लेके उसको ड्रैग कर दिया, उसके बाद क्या किया मैंने, स्विच ऑन कर दिया, क्लियर। ये वाला अभी ऑन हो गया। इस तरह इस पीसी को भी मैं क्लिक करूंगा, क्लियर, यहाँ पर फिजिकल जाऊंगा और WIC2T जाऊंगा, क्लियर। उसको थोड़ा जूम इन कर देंगे, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। उसके बाद स्विच ऑफ करूंगा, इसको लाकर यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद मैं ये वाला ऑफ कर दूंगा, ऑफ कर दिया। अभी देखो अभी हो गया। अभी सीरियल डीसी केबल काम करेगा नहीं कर रहा है, देखो थोड़ा सीरियल डीसी, देखो इसका पोर्ट आ गया, सीरियल पोर्ट आ गया, ठीक है। इसमें ज्वाइन कर दूंगा और इसका सीरियल पोर्ट भी इसका मैं ज्वाइन कर दूंगा। समझ में आ गया। तो अभी मेरा क्या हुआ, सीरियल पोर्ट मैंने ऐड कर दिया। अभी क्या करना है, देखो ये वाला क्लास ए का नेटवर्क होता है, ये वाला क्लास बी का होता है। ये जो दोनों जो देख रहे हो, देखो ये जो मैं तुमको अभी दिखा रहा हूँ, ग्राफिकली दिखा रहा हूँ, देखो ये वाला, देखो ये वाला तुम्हारा राउटर होता है, क्लियर। ये दोनों राउटर होता है, देखो ये दोनों राउटर होता है, मेरे दोनों राउटर नहीं आए, क्लियर। दोनों राउटर में मैंने क्या किया, 4 भाग हुआ है, 2 भाग, क्लियर। इस साइड से मैंने क्या आईपी एड्रेस रखा है, अच्छी तरह समझने की कोशिश करो। इस साइड से मेरा आईपी है, क्लियर, 10.1.1.3 है। ठीक है, तो पोर्ट राउटर का आईपी क्या दिया था मैंने, 333, सॉरी सर। हाँ, इस तरह यहाँ पर भी यहाँ पर भी मैंने क्या दिया था, सपोज मान लो सपोज 128.1.1.3 दिया था, ओके। तो अभी देखो ये वाला क्लास ए का नेटवर्क है, ये वाला क्लास बी का है। अभी तुम लोग को इस दोनों में से क्या करना है, क्लास सी नेटवर्क बनाना है। तो इसलिए मुझे यहाँ पे कौन सा आईपी देना पड़ेगा ना, 192.168.1.1, और ये वाला भी मुझे देना पड़ेगा क्या ना, 192.168.1.2 देना पड़ेगा। जो कि इस तरह करने से क्या होगा, इस दोनों के बीच में लिंक हो जाएगा। और एक केबल का नाम क्या होता है तुम्हारा, मैंने क्या ऐड करते हैं, केबल का नाम क्या होता है, सीरियल डीसी, ओके। तो अभी देखो इस दोनों का मुझे आईपी एड्रेस और अलग एक आईपी एड्रेस लेना है, देखो नहीं तो कनेक्ट नहीं होगा। देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर देखो ये वाला कौन सा देखो ये वाला कौन सा पोर्ट में आ रहा है, 00। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, क्लियर। तो यहाँ पर मैंने कॉन्फ़िग गया, 00 में क्लिक किया। अभी देखो उसका भी ऑन करना पड़ेगा, देखो अच्छी तरह देखो, उसका ऑन करना पड़ेगा। और उसका आईपी एड्रेस क्या देना पड़ेगा, 192.168.1.1, क्लियर। वो सॉफ्टवेयर बस ऑटोमेटिकली ले गया, क्लियर। इस तरह उसको मैंने क्लोज कर दिया। इस तरह इसका पोर्ट क्या है, 0/0, उसके मैंने क्लिक किया, क्लियर। और यहाँ पर कॉन्फ़िग गया, अभी 0/0 में क्लिक किया, अभी इसको मैंने ऑन किया। इससे यहाँ पर क्या लिखूंगा ना, 192.168.1.2, अभी सबनेट मास्क सेटअप कर दिया। अभी मैंने क्या किया, अभी क्लोज कर दिया, हो गया। इसके करने के बाद क्या, देखो सारे ग्रीन दिख रहे हैं, बहुत जगह पर लाल नहीं दिखा रहे, क्लियर। तो अभी मैंने फिर भी क्या करना पड़ा, देखो थोड़ा अच्छी तरह देखो, उसके मैंने क्लिक किया। अभी ये वाला कॉन्सेप्ट तुम लोग के पास आ गया, ये वाला, उसको मैंने क्लिक किया। हाँ बताओ। टॉप बॉक्स इन द सर, वो जो दिखाए थे अभी,
अभी जो नोट पे? खोले थे, नहीं सर, वो जो पैकेट का वो राउटर 3 का जो हाँ। खोले थे अभी, हाँ। अब जो नीचे एक ठो था उसको क्लिक करवा टॉप दो। करके, हाँ सर वो टॉप हाँ। करके एक ठो, हाँ ये वाला, ये हाँ। नीचे वाला, ये जी, ये सर नीचे नीचे से, नीचे ये वाला, ये वाला। टॉप वाला, नीचे जो है उसका फंक्शन है, नीचे नीचे से नीचे ये वाला। नीचे कॉर्नर, हाँ, ये वाला तो ना, फिजिकल। वो जो टॉप है नीचे, पूरा नीचे देखिए सर, लेफ्ट एक्सट्रीम हाँ। पूरा। हाँ। हाँ, ये वाला। सर ना? सर वो टॉप बोल रहे सर, एकदम नीचे। Third left bottom. सर वो नीचे है पूरा। टॉप bottom. चेक बॉक्स है क्या है? सर, एक वो। नीचे मतलब कौन सा नीचे तो? Third left सर वो bottom. जो सर कॉर्नर बॉक्स में पूरा टॉप नीचे। लिखा हुआ है। पूरा नीचे सर बॉक्स Sir, के नीचे। sir, हाँ left एकदम नीचे bottom. सर। बॉटम। सर बॉटम Left आप लोग bottom है बॉटम। sir. अरे सर वो iOS कमांड्स के नीचे है सर। सर वो जो चेक बॉक्स हाँ। में टॉप है. हाँ लेफ्ट में हाँ। जाइए सर, लेफ्ट में हाँ, जाइए, ये जो वाला। टॉप चेक हाँ, बॉक्स। ये वाला, ये वाला। हाँ 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 सर, हाँ। हाँ ये सर, इसका उसका काम क्या होता है वही बोल रहे हो ना क्या? हाँ सर वही वाला। इसका शायद ये वाला जो देख रहे हो शायद, देखो इसका काम क्या होता है तो इतना मतलब मालूम नहीं, इसे तो हम यूज नहीं करते। तो कौन सा एडवांस है टॉप, मतलब शायद ये वाला, ये शायद ये वाला टॉप करने से ये वाला नहीं जाएगा। देखते हैं, ये देखो जा रहा है नहीं, ठीक है ना? ये पॉपअप नहीं जा रहा है, देखो अच्छा, समझ में आ गया? तो ये देखो पॉपअप, ये देखो। वेटिंग में हाँ आगे से। हाँ, पॉपअप नहीं गया। अच्छा ठीक है, अभी हो गया क्लियर। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, उसको हटा देता हूँ। तो अच्छा ठीक है, अभी देखो अभी ये वाला अभी सेटअप हो गया। अभी क्या करेंगे, अच्छा ठीक है, अभी मैंने उसे यहाँ पर क्लिक किया। अभी देखो अच्छी तरह देखो, यहाँ पर मैंने अभी यहाँ पर स्टैटिक गया, स्टैटिक क्लियर। स्टैटिक में मुझे अभी क्या करना है, इस नेटवर्क, इस राउटर पर क्लिक करूंगा, इसका डिटेल्स इंफॉर्मेशन मुझे स्टैटिक में देना है। थोड़ा अच्छी तरह देखो, उसका जो डिटेल्स इंफॉर्मेशन होता है मुझे अभी क्या करना है, इस राउटर में देना है। देखो क्या देना है, देखो देखो अभी बोलो नेटवर्क में क्या रहेगा, बोलो ये वाला, सॉरी ये वाला में मुझे इस साइड का इंफॉर्मेशन। तो अभी बोलो नेटवर्क में क्या रहेगा, बोलो बोलो मुझे कौन सा नेटवर्क चाहिए, बोलो ये वाला नेटवर्क चाहिए ना। मुझे 10.1.1 से जाना है 121। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, बोलो क्या लिखूंगा, नेटवर्क आईडी लिखूंगा। तो व्हाट इज नेटवर्क आईडी, बोलो इस साइड का नेटवर्क आईडी क्या है? 128. हाँ 128.1.1 उसके बाद 0.1. 0.1 0.00 ना, क्लास भी के में Sorry sir. क्लियर है, मैंने देखा है था ना। देखो क्लास बी का नेटवर्क आईडी क्या होता है, दोनों डिजिट कॉमन रहेगा, बाकी जीरो। उसके बाद वो अच्छा. समझ में आ गया? तो इस तरह मैंने यहाँ पर ये वाला लिख दिया। मास्क क्या होगा, 255.255. नेक्स्ट लूप क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट लूप क्या होता है। देखो नेक्स्ट लूप क्या होता है, जब यहाँ पर डाटा जा रहा है तो इस साइड से कौन सा नेटवर्क फास्ट मीट कर रहा है, कौन सा आईपी एड्रेस वो पहले फेस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड नेक्स्ट लूप। कौन सा आईपी एड्रेस वो पहले फेस कर रहा है, बोलो इस राउटर का कौन सा आईपी एड्रेस। Sir, 128. देखो यहाँ पर जो डाटा दे रहा है पहला कौन सा आईपी एड्रेस फेस कर रहा है, अच्छा इधर से जा रहा है सर, हाँ। ये वाला. कौन सा, इसमें से कौन सा आईपी एड्रेस वो पहले फेस कर रहा है, बोलो इस टोटल सेट्स में कौन सा आईपी एड्रेस। सर वो 192. yes चला okay, you will be right here 192.168.1.2 okay, then click the add। ये ठीक तरह नहीं लिखोगे तो ऐड नहीं होगा, क्लियर। देन उसका आई विल क्लोज दिस। समझ में आ गया? अगर मैं इस तरफ क्लिक कर रहा हूँ इसके ऊपर
तो बोलो इस साइड से मुझे क्या लिखना पड़ेगा, बोलो, तुम बोलो 10.0 क्या लिखना पड़ेगा। इस नेटवर्क डिटेल्स क्या है, 10.1 10 पॉइंट क्या 1 नहीं, मैंने बताया ना क्लास ए का पहला नंबर कांस्टेंट रहता है, बाकी सब क्या होता है, 0 धन्यवाद क्या होता है, सर 255 2550000। ये वाला क्या होगा, सर वो 1 इधर से जो पहला जाएगा 198 192 लिखा था ना, 192.168.1.1 हो गया, 192 लिखा था ना, क्लियर। अभी समझ में आ गया, अभी डिटेल्स हो गया मेरा कॉन्फ़िगरेशन। अभी मुझे क्या करना है, अभी डाटा ट्रांसफर करना है। तुम लोग घबरा जाओगे सर डाटा ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, थोड़ा ये वाला जो होता है तुम्हारा टेक्स्ट बॉक्स का होता है, टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ रेक्टेंगल, देखो ड्रॉ रेक्टेंगल यहाँ पे क्लिक करके ड्रॉ रेक्टेंगल नो फिल, देखो यहाँ पर ड्रैग करो, यहाँ पर उसका आईपी एड्रेस दे सकते हो, क्लियर, उसका आईपी एड्रेस दे सकते हो कितना नहीं ले रहे, इसका रुको ड्रॉ लाइन ड्रॉ नोट, यहाँ पर उसका आईपी एड्रेस ले सकते हो, क्लियर, इसके आईपी एड्रेस यहाँ पर तुम सेट करके दे सकते हो 192.168.1.1, क्लियर, समझने के लिए दे सकते हो। फिर इस तरह यहाँ पर भी देख सकते हो क्या 192.168.1. अच्छा हम अभी देखेंगे डाटा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, देखो इसके मैंने अभी यहाँ पर गया, क्लियर, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ये सक्सेस, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ये सक्सेस। अच्छा फेलियर मारे, ठीक है, और एक बार ट्राई करेंगे, देखो डिलीट कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक, अच्छा फेलियर दिख रहा है, ठीक है, इस तरह यहाँ पर देखिए जा रहा था क्या, सक्सेस, सर शायद उस टाइम आप ओके नहीं क्लिक किए थे, कौन सा, अच्छा दे दे वो ओके नहीं क्लिक कर, देखिए शायद सर देख लीजिए। नहीं 10.3 ठीक है, मैं तो एड्रेस लिख देता हूँ, उसको चेक कर देता एड्रेस, यहाँ पर 10, वो एड्रेस नहीं है, 10.1.1.3, क्लियर, आईपी एड्रेस ऑन, अभी कर दीजिए, देखो अभी डिलीट मैंने कर दिया, देखो यहाँ पर यहाँ से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और टाइम लग रहा है, क्लियर, सेटअप करने थोड़ा टाइम लग गया, क्लियर, इसका डिफॉल्ट गेटवे एक्सेस देखते हैं दिया है कि नहीं दिया है, 10.1.1.3 ठीक है, और उसका क्या देखते हैं, इसका 10.1.3, अच्छा ठीक है, अभी देखो अभी डाटा जा रहा है नहीं, देखो सक्सेस हो गया, फिर इस साइड से शायद नहीं लिखा होगा, देखो 10.1.2 258 10.1.3, इसके इस साइड से देखते हैं, इस थोड़ा टाइम लग रहा है, हाँ ठीक है, अभी लगा, देखो देखो सक्सेस हो गया, थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसे नहीं कि नहीं हो रहा है, ये वाला सबको समझ में आ गया, इस साइड से हो गया सर सक्सेस, तो दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इस साइड का सक्सेस हो गया, अभी इस साइड का देखो, हाँ इस साइड का देखो, फिर इस साइड से क्या प्रॉब्लम हो गया तो देखते हैं, रुको ये शायद दिया नहीं इसका 128 गेट डिफॉल्ट गेटवे नहीं मैंने नहीं दिया है, 128.1.1.3 ही दे दिया, और उसका भी डिफॉल्ट गेटवे एक्सेस दे दिया 128.1.1.3, अभी देखो जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्या अभी देखो इससे यहाँ तक थोड़ा टाइम लग रहा है, डिलीट में कर देता हूँ,
ये वाला है, इसको हटा देते हैं। अच्छा अभी देखो, राउटर का देखते हैं, राउटर का दिया है कि नहीं दिया है। राउटर का नहीं दिया है। 128.1.1.3 ओके। अभी देखो, वैसे वो चला गया था, अब हो गया। देखो थोड़ा टाइम ले रहा है, होगा मगर देखो। हाँ, ठीक, उस साइड से देख देते हैं। 128.1.13 अच्छा देखो, इसको डिलीट कर देते हैं। सक्सेस हो गया, क्लियर। मतलब टाइम थोड़ा ले रहा है सेटअप कर, इतना बड़ा नेटवर्क है तो टाइम ले रहा है। हो गया, देखा इस साइड सक्सेस हो गया। अभी दोनों राउटर के बीच में कर रहे हैं सक्सेस, इस पीसी से इस राउटर। अच्छा ठीक है, और एक बार करते हैं, इस पीसी से राउटर करते हैं, देखते हैं। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ा और इस साइड से देख देते हैं तुम्हारा। इसमें थोड़ा देखते हैं, कन्फ्यूज करके देखते हुए तुम्हारा स्टैटिक में 128 को जा रहा है। ओके 192, हाँ ठीक है। अच्छा अभी देखो हो रहा है। देखते हैं, को थोड़ा इसका पोर्ट थोड़ा देख देते हैं। 192 क्लॉक रेट कितना है, 1 लाख तो है, तो इसका क्लॉक रेट देख देते हैं। स्टैटिक इसमें ऐड नहीं हुआ है, देखो क्लियर, उसमें ऐड नहीं हुआ, ऐड किया था कहाँ चला गया, देखो। और एक बार ऐड कर देते हैं, देखो उसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने क्लिक किया अभी, ठीक है। स्टैटिक इस साइड से देना पड़ेगा क्या, 10.1 10.0.0.0 टू 55.0.0.0। नेक्स्ट क्या होता है, 192.168.1.1। अभी देखो इस साइड से है तो चला गया, देखते हैं। हाँ अभी है, इस साइड से ठीक है। अभी देखो आ गया, तो चला जाता है। हाँ सो जाने यशवंत। सक्सेस, हाँ हाँ ये आ गया सक्सेस। हाँ हाँ सुन सर को सक्सेस हो गया, देखा समझ में आ गया। तो अरे दिखाई दे रहे थे सबको, देखो सक्सेस। यस सर। मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा तुम लोग का आज, क्लियर ओके। हाँ उसके थोड़ा चला गया था, मतलब मैं कॉपी पेस्ट कर, मतलब इस साइड से उस साइड से थोड़ा चेंज करते हैं, चला गया था। लेकिन तुम लोग धीरे धीरे से करोगे तो हो जाएगा, एक साथ ही एक टाइम में भी हो जाएगा, क्लियर। हाँ ठीक है।